Welcome. Good afternoon, sir. Good afternoon. Thank you, sir. Thank you very much. Yes. So today, chapter number 6, the book, The End of My Assumptions of Miasm, book of Dr. Praful Vijayakar. It is third book. And the chapter number 6, the cell defense at work. So how the cell defenses. When any of the above, sorry, 1 minute. The cell defenses at work, chapter number 6, when any of the above factors threaten to injure or injure a cell, the cell start defending with whatever resources of defense it possesses. The primary mode of defense, as we already saw, is adaptability. In adaptability, the cell or tissue tries to strengthen or increase the normal tissue or cell mass to give rise to hypertrophy as a response to increased stress. Vice versa, it sets up the mass to give rise to atrophy. If the part is less used, such normal adaptation response is observed only in natural stress oriented or exercise oriented factors in which the muscle or tissue try and re-establish a homeostatic equilibrium in changed circumstances by bringing about changes in themselves. No aggressive option is available here to remove the stress stimuli. So cell defenses at work. तो कल हमने देखा था कि सेल किस तरह से अपना डिफेंस मोड चेंज करता है, किस तरह से एडेप्टेबिलिटी उसमें आती है, राइट? सो फर्स्ट एडेप्टेबिलिटी, there is inflammation, inflammatory process will start, then the second is induration, hypertrophy or hypotrophy, then destruction. Yes. So these are the sets, 3 sets of adaptation. When the stimulus is more irritating, more destructive, more injurious like bacterial, fungal or viral infections, or constant trauma, physical or chemical, the cell takes a different step. The defenses which follow are as follows. सेल डिफेंसेस मैकेनिज्म, तो किस टाइप का मैकेनिज्म होता है, सेल किस टाइप से डिफेंसेस मोड में आता है, किस टाइप से डिफेंस 1 by 1 चेंज हो जाता है इन द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेबिलिटी. यस, सो सेल डिफेंसेस मैकेनिज्म, तो कितने टाइप के मैकेनिज्म्स है, कितने टाइप के डिफेंसेस हैं. Every cell or living organism faces damage or cell injury from pathogens. तो हमने कल एजेंट्स भी देखे थे, सेल इंजुरी एजेंट्स कितने हैं, कितने टाइप के एजेंट्स होते हैं जिससे सेल इंजुरी होती है. यस, सो injury from pathogens, injury from toxins, injury from chemicals, radiations, thermal factors like
extreme heat or extreme cold, it has a different types of mechanism to defend itself. Yes. तो सेल ऑलवेज ट्राइज टू डिफेंड इटसेल्फ। अगर कोई थ्रेट भी आती है तो सेल विल कम इनटू एक्शन। यस, सो फर्स्ट डिफेंस, दैट इज द फिजियोलॉजिकल डिफेंस। सेकंड इज मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस। सो morphological constructive and morphological destructive is the third defense. So physiological defense, that is the inflammatory process, that is SORA. And morphological defense, it has two types: morphological constructive, that means psychosis; morphological destructive, that means syphilis. So morphological means structural. This type of defense involve change in structure. Morphology change होना, that means structure change. तो structural changes में एक तो एट्रोपी आएगी या फिर हाइपरट्रोफी आएगी, एक्सट्रीम ग्रोथ या फिर एट्रोपी. So this type of defense involves change in structure or morphology. This morphological defense expresses itself in two different manners. One is by construction and other by destruction. So for all practical purposes, there are three means available for a cell to defend. So the three defenses, that is physiological defense, morphological defense constructive, and morphological defense destructive. Yes. So first defense, that is the physiology. So according to defense, we have three miasms, that is SORA, psychosis, and syphilis. So according to physiology, that means SORA; morphology constructive, that means psychosis; morphology destructive, that means syphilis. So first defense, physiological defense. Sorry for noise. साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए बीच बीच में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होगा, नॉइस पोल्यूशन होगा. सो फर्स्ट डिफेंस फिजियोलॉजी, दैट इज फिजियोलॉजिकल डिफेंस. फिजिस मीन्स नेचर. सो फिजियोलॉजिकल, दैट मीन्स फिजियोलॉजी और प्रोमोटिंग नॉर्मल और हेल्दी फंक्शनिंग. सो फिजियोलॉजी हम उसे कहते हैं जो बॉडी की नॉर्मल कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, होम्योस्टैसिस मेंटेन होता है, दैट इज द फिजियोलॉजी. So it means a defense by a cell or an organism brought about by promoting the natural or normal healthy functioning in the cell or tissue. Say a cell is attacked by a bacteria or fungus. The first step the cell may take is to promote production of certain already present antibacterial agents secreted by it on the cell wall, like lysozyme in mucous membrane or some unsaturated fatty acid on the skin equilibrium. This is normal physiology. So जैसे हमें कुछ इंजरी होती है, जैसे कट, कोई शार्प पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट से कट हो गया स्किन पे, तो वहां पे एक थिन फ्लूइड सीक्रेट होता है, लिक्विड सीक्रेट होता है, थिन वाटरी ट्रांसपेरेंट लिक्विड आ जाता है, स्टिकी लिक्विड, दैट इज द लाइसोजाइम. और ये नेचुरली होता है क्योंकि वहां जो बैक्टीरियाज आएंगे, जो पैरासाइट्स आएंगे, जो भी फॉरेन ऑर्गेनिजम्स वहां होंगे, उसको किल करने के लिए ये ऑटोमेटिकली बॉडी की फिजियोलॉजी करवाती है ना. दैट इज द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन.
So when this normal physiology become fail, afterward the defense of the body start. That first defense is called physiological defense is SORA. That means inflammation. Okay, pain, rubor, dolor, tremor, like this. These are the signs of inflammation, and this is the first defense. So it may injure a cell to produce free fluid in large quantity so that the bacteria or fungus can wash off. This is commonly observed in cases of upper respiratory tract invasion by any organism where first defense is the production of fluent coryza. Yes, जैसे हम कुछ स्मेल कर लेते हैं डस्ट या फिर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स तो हमें स्नीजिंग होता है ना? This is the reflex. This is normal physiology. If this reflex become fail to remove this that particles, foreign particles, then the first defense will start. So, and that first defense is fluent coryza. और ये कोराइजा, ये थिन वाटरी लिक्विड इसलिए आएगा ताकि वो जो भी फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के नोज के अंदर गए उसे वॉश आउट करना. दिस इज द फर्स्ट डिफेंस. सो दिस fails the primary immune response of the inflammation is used to get rid of the invasive stimuli. It is proceeded by increased sensitivity and irritation. When the bacteria or the harmful agent does invade the cell, there are changes which are brought about in the interior and exterior of the cell, which are purely chemical, like increasing or decreasing the pH of the cytoplasm, or as mentioned earlier, excess production of antibacterials. Yes, the sole aim is to make the bacteria die, that is own death, by changing temporarily the biochemistry within the cell or the neighboring tissues. This is the first defense, the physiological defense. Yes, तो सेल में ऐसे कुछ चेंजेस हो जाते हैं जब body की normal physiology become fail, then the cell goes into the defense mode, and वहां पे ऐसे कुछ चेंजेस होंगे कि वहां का जो secretions है, that is the antibacterial जिसकी प्रॉपर्टी होती है उसे बढ़ाना शुरू कर देता है. That increases and secretion will increase, and the secretion will kill that bacteria or foreign organisms. Yes. So this is the first defense. So inflammation is the physiological defense response. So tonsillitis, so physiological defense, physiological response, and the diseases of physiological defense like tonsillitis, bronchitis, gastritis, gastroenteritis, appendicitis, encephalitis, arthritis, pneumonitis, hepatitis, meningitis, so and so, etc. So these are all itis disease, that means inflammatory disease comes into the SORA. So a knowledgeable physician is aware of the fact that all these with suffix itis indicates inflammation of the said parts. The Book of Physiology categorically states that inflammation is protective response. That is the first response is protective response, and it is inflammation. So the ultimate goal is to rid of organism of both the initial cause of cell injury like microbes, toxins, etc., and consequences of such injury, for example, neurotic cells and tissue. Inflammatory response is closely intermingled with the process of repair. Yes. So it is a natural process. So ये first defense
जब कुछ भी इंजुरी होती है, कुछ भी जब फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में एंटर होते हैं, ऑर्गेनिजम्स एंटर होते हैं, तो बॉडी will come into the action and this first response will start. और ये किस लिए होता है, क्यों बॉडी इस तरह से बिहेव करती है immediately? Because to save the interior organs, the internal organs. Yes. So inflammation serves to destroy, dilute, or wall of injurious agents, and in turn set up series of events which heal and reconstitute the damaged tissue. So without inflammation, infection would go unchecked. Yes, without inflammation, infections would go unchecked, would never heal, and injured organs and tissues might remain permanently ulcerated and damaged. तो ये इस तरह का कुछ बॉडी में ना हो, बॉडी को कुछ हार्म ना हो, डैमेज ना हो, इसलिए फर्स्ट inflammatory process will start. So if a tissue shows a defensive response, it means every cell should show such a defensive response. Every cell wants to survive and is therefore bound to have somewhat similar response. So survival is the first function of cell, first defense of cell. So survival, each and every cell want to survive. If this defense become fail, then the cells will change their gears into second defense mode. If inflammation से भी वो cover नहीं हो रहा है, inflammation उसे cover नहीं कर पा रही, then the cell goes into second defense. So if a tissue shows defensive response, it means every cell should show such a defensive response. Every cell should want to survive and is therefore bound to have somewhat similar response. Ultimately, it is the tendency to inflammation or recurrent infection which are harmful and should be taken care of rather than the inflammation itself. Yes. Yes. जब inflammation फेल हो जाता है या फिर inflammation recurrently हो रहा है, तो हमें वहां इंटरफियर करना पड़ेगा, because afterward it may become dangerous. So it may turn into gangrenous or destructive part or ulcerative. Yes. So ultimately it is the tendency to inflammation or recurrent infections which are harmful and should be taken care. So we observe that in a family with many children, one child may be suffering from recurrent bronchitis or recurrent tonsillitis more often than the other children living in the same environment and consuming the same food and drinks. The virus or bacteria which cause this infection and inflammation spare the other children and frequently attack the tissues of this child. The whole world is full of parasites which thrives on toxins produced in tissues which serve as nutrition for them. Yes, there's a mite which causes scabies will never attack the manifest itself as skin lesion until and unless the skin cells of the person have disturbed equilibrium and harbor sufficient toxin to feed them. Yes. तो सर ने यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि घर में अगर 2-4 बच्चे हैं तो उसमें से एक ही बच्चा है जो रिकरेंटली किसी चीज से सेंसिटिव होने की वजह से उसे रिकरेंटली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिलाइटिस होता है, साइनोसाइटिस होता है. देन सर ने यहाँ माइट का भी एग्जाम्पल दिया है कि माइट विच कॉजेस स्कैबीज. यस, तो जनरली अगर स्किन की इम्यूनिटी हम अभी इस तरह से सोचते हैं, हम इस तरह से
सर ने हमें बताया कि अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो माइट वहां पे कुछ नहीं करेगा। उस बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कितना भी इंफेक्शन आने दीजिए, वहां कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर एक बार वहां इंफेक्शन होगा, दैट मीन्स उसका जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो कहीं तभी कॉम्प्रोमाइज हो गया है। और अगर रिकरेंटली हो रहा है, दैट मीन्स द डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ दैट चाइल्ड बिकम फेल। सो जब हैनीमन सर के पीरियड में माइट, स्कैबीज, ये डिजीजेस बहुत ग्रॉसली उस एरा में फैल रहे थे। तो हैनीमन ने क्रॉनिक डिजीज में लिखा है कि स्किन, जैसे कि स्कैबीज, एक्जिमा एंड स्किन के जो डिजीज होते हैं, दैट इज ईच, तब उन्होंने ऐसा मार्क किया कि जैसे कि अगर किसी पर्सन को लेप्रेसी है या फिर सोरियासिस है या फिर स्किन इन्फेक्शन है, दैट मीन्स सोरा वहां पे फेल हुआ है एंड सोरिक सिम्टम्स वहां बढ़ गए, तो उस पर्सन ने अगर किसी और पर्सन को टच किया तो वो सोरा उस पर्सन में कैरी ऑन होगा। ये थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज में हैनीमन ने लिखा है। इसीलिए कि अगर कोई बर्थ बच्चे का हो रहा है और ड्यूरिंग बर्थ जो भी अटेंडेंट है उन्हें कुछ अगर सोरी प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, तो वो सोरा उस बच्चे में भी ट्रांसफर होगा। ये हैनीमन ने उस टाइम पे लिखा है। So it is needless to say that the microbes like bacteria, viruses, fungi, or toxins are not necessarily the cause for pathological inflammation, but some change prior to it in the tissues which act as an invitation to these pathogens and result in easy inflammations. Yes. The first irritation, sensitivity, redness, swelling, and sometimes anesthesia. So this is the first defensive mechanism. Now, the symptoms of first defensive mechanism, sir have explained here. So calor, that means heat affected part. Rubor, that means red angry loop of that part. In a case of eczematous dermatitis or infective boils, the disappearance or reduction of anger at the site, that is red angry look of the site, is a sufficient indication that the right simillimum is at work and one dose has set about the right curative process. Hence, no more repetition is required and the resolution is now only a matter of time. Yes. So, dolor, pain. Pain in a part, whether in a boil or in an inflamed joint, is a symptom which is friend of an individual. So, pain, it is, sir ne kaha ki pain, it is the friend of an individual. Why? Pain is a friend. पेन से तो सब कोई डरते हैं, लेकिन पेन को फ्रेंड क्यों कहा? क्योंकि पेन इट अट्रैक्ट्स आवर अटेंशन। जिस भी साइड में, ऑर्गन में, पार्ट में पेन होता है तो हमारा पूरा ध्यान, पूरा इंटेंशन, पूरा माइंड उस तरफ चले जाता है ताकि हम उस पार्ट की केयर कर सकें। तो उस पार्ट के केयर के लिए सर ने पेन के लिए friend card. So the pain in an inflamed part protects the inflamed part from further destruction by sending impulses. That's why it is pain. So of pain to the brain of the individual to draw his attention to the affected part. The existence of the pain causes the individual to restrict the movement of the part and guard the injured part. Yes. So removal or suppression of pain
Without the inflammatory process, subsiding will no doubt lead to further damage to the part. So as the guard itself is made important, it is something like keeping a dog to guard your house from robbers, but when he starts barking and disturbing your sleep on seeing the robbers, you tie up his mouth so that he does not bark. और हम exactly ऐसा ही करते हैं. Each and every patient wants to stop his pain. कुछ तभी ऐसा दो कि हमारा पेन पूरी तरह से वैनिश हो जाए, पूरी तरह से गायब हो जाए. Each and every patient wants medicine for pain, है ना. लेकिन जैसे सर ने यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि हमने घर में कोई डॉग रखा है, तो डॉग का मेन इंटेंशन ये होता है कि घर का प्रोटेक्शन हो, हमारा प्रोटेक्शन हो. और जब कोई डेंजर उसे दिखता है तो वो भूखना शुरू कर देता है ना, बार्किंग. और जब उस बार्किंग की वजह से हमारी नींद खराब होती है तो हम चाहते हैं कि उसे चुप किया जाए. अगर वो चुप होगा तो प्रोटेक्शन कैसा होगा. इसी तरह से अगर हमने पेन किलर दे दिया, पेन सबसाइड कर दिया, पेन के लिए कोई रेमेडीज दे दिए और पेन चले गया, इसका मतलब ये नहीं कि डिजीज क्योर हो रहा है, ओनली पेन सबसाइड होगा, लेकिन डिजीज वहां पे बढ़ते रहेगा. इट विल ग्रो डेंजरसली. यस. सो इसीलिए जैसे कि डॉग का मुंह कभी बांधना नहीं चाहिए, उसे भूखना बंद नहीं करना चाहिए, उसी तरह से पेन के लिए कोई मेडिसिन नहीं देना चाहिए, क्योंकि पेन इट इज सोरा. और जब हम इसके लिए मेडिसिन देते हैं, इसे सबसाइड करते हैं, दैट मीन्स वी आर सप्रेसिंग द डिजीज. सो द progressive degeneration or destruction of the joint cartilages and bones in various arthritis is essentially an effect of maluse or indiscriminate use of painkillers. Yes, whether they are allopathic, ayurvedic or homeopathic. Mostly painkillers खाने वाले पेशेंट कौन से होते हैं? तो माइग्रेन, जॉइंट पेन्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, है ना, सर्वाइकल lumbar spondylosis, sciatica. This patient will always take painkillers. और कभी कभी उसके साथ स्टेरॉइड भी. सो इसीलिए सर ने कहा है the progressive degeneration or the destruction of joints, cartilages and bones in various arthritis is essentially an effect of maluse or indiscriminate use of painkillers, where they are allopathic, ayurvedic or homeopathic. So tumor, edema or swelling, absorption of edema or swelling is somewhat of a simultaneous affair along with the reduction in vascularization and pain, stiffness and gardening. Yes. तो जैसे ही रेडनेस पेन के लिए हम कुछ देते हैं तो पेन वहां से सबसाइड हो जाता है और स्वेलिंग बढ़ना शुरू हो जाता है, एक्यूमुलेशन बढ़ना शुरू हो जाता है. व्हाई दिस ऑकर? देखो कितना अच्छा है, कितना नेचुरली मतलब नेचर ने कितना अच्छी तरह से इस चीज को यहाँ अरेंज किया है. नेचुरल प्रोसेस कितनी स्ट्रांग होती है. दैट मीन्स फिजियोलॉजी ऑफ आवर बॉडी इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग एंड वंडर. तो किस तरह से ये वंडर होता है? जे पेन हो रहा है, दैट मीन्स वहां इंफ्लामेटरी प्रोसेस है,
और वो पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि वो डिफेंस मैकेनिज्म है, फिजियोलॉजिकल डिफेंस है बॉडी का, और वो पेन की वजह से हमारा पूरा ध्यान उस तरफ जाएगा, उस पार्ट की तरफ जाएगा। वो होता ही इसलिए कि हम उसकी केयर ले सकें। लेकिन हम अगर पेन किलर, पेन सबसाइड करने के लिए कुछ लगाते हैं या फिर कुछ लेते हैं टैबलेट्स, मेडिसिन, तो उससे वो पेन चले जाएगा, लेकिन वहां का डिफेंस मैकेनिज्म नहीं गया। आपने पेन सबसाइड कर दिया, लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म चाहता है कि आप पेन निकल जाने के बाद भी अंदर की टिश्यूज, ऑर्गन्स और सेल्स को कोई डैमेज ना हो, इसलिए वहां पे सेकंड मोड आ जाता है, गियर चेंज हो जाता है, देन वहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। वो एक्यूमुलेशन इसलिए हो रहा है, वहां पे फ्लूइड जमा हो जाएगा, एक्यूमुलेशन होगा ताकि अंदर के सेल को कुछ डैमेज ना हो। क्योंकि पेन चले गया मतलब हम इजीली उस पार्ट की मूवमेंट्स कर सकेंगे, उस पे प्रेशर दे सकेंगे। अगर हम उस पार्ट की मूवमेंट करते, प्रेशर देते, तो अंदर की पार्ट को डैमेज हो सकता है, इसलिए वहां स्वेलिंग बढ़ना शुरू हो जाता है। दैट इज द ट्यूमर। सो the use of muscle relaxant is dangerous as the gardening by muscles is relaxed even before inflammation has subsided, that is functionalisa, loss of function. तो जैसे ही वहां स्वेलिंग आएगा, एक्यूमुलेशन होगा फ्लूइड का, तो उस पार्ट की मोबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, दैट इज द functionalisa. So these are the 5 points of inflammation: Rador, Dolor, Calor, and functionalisa. So the dreaded inflammatory diseases mentioned above are all due to first defense mechanism at work. If most of the dreaded inflammatory diseases mentioned are due to the first defense mechanism at work, then there is a possibility that most of the other diseases which do not fall into this category are also due to self-defense mechanism at work. So all diseases are psoriatic diseases because of psoriatic defense mechanism. So this is the first defense. Now the second defense, that is the constructive defense, morphological defense. So let us imagine for the time being a situation where two people are sitting next to each other. One of them, Mr. X, the aggressive one, tries to poke the second Mr. Y with a pointed instrument in the arm. Yes, बहुत अच्छा सर ने यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि 2 persons साथ में बैठे हैं और एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ प्रिक कर रहा है, तो इमीडिएटली वो सेकंड पर्सन क्या करेगा? जैसे प्रिक होगा वो पर्सन बाजू में सरक जाएगा या फिर बाजू में हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट डिफेंस। फिर भी ये पर्सन उसे प्रिक करना छोड़ ही नहीं रहा है, फिर वो थोड़ा सा बाजू में सरक जाएगा, फिर भी वो पर्सन उसे प्रिक करना नहीं छोड़ रहा है, उसके साथ बाजू में सरक गया और प्रिक कर रहा है, तो वो पर्सन सोचेगा कि ये मानने वाला नहीं है, तो मैं कुछ और करूं, तो फिर वो बीच में बैरिकेड रख देगा। एंड दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट इस साइकोसिस। वहां पे उसने बैरिकेड बिल्ड किया, दैट मीन्स खुद को हाइड किया बचने के लिए, है ना, उस प्रिक से बचने के लिए, खुद को सेफ रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वहां बैरिकेड आया। दिस इज द सेकंड डिफेंस, दैट इज साइकोसिस, morphological constructive defense. So Mr. Y, basically a peaceful, non-aggressive person, cannot fight and does not want to fight, and therefore tries to avoid the poke, which is irritating by bringing about mere changes in the body position, the structure remaining the same. This depends from the poke or the irritation is brought about with the existing physiology and anatomy. This is equivalent to physiological defense. Yes. So position change करना मतलब वहां फिजियोलॉजी फिजिकल कोई चेंज नहीं हुआ, मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं हुई, ओनली पोजीशन चेंज की, दैट इज द
first defense. So when this type of adjustment with the exciting structure is not enough and the irritation still continues, Mr. Y starts thinking of other alternatives. He has to get rid of this constant irritation, however minor the irritation when it continues for prolonged period. The irritation when it continues for prolonged period, it can be destructive and dangerous to her life. It can, in the long run, Mr. Y feel bitter. He wants to survive, so he invents a novel method to defend himself from this. He places a fat pillow or construct a wall or a barricade, which he thinks will protect him from harmful effect of the poking irritation. Somewhat on the same line, the cell, which also has a mind governed by the genetic apparatus, tries to defend itself. अब आपके समझ में आया होगा कि सर बार बार कहते हैं कि each and every cell have a mind, है ना? तो ये यहाँ पे यूज हो रहा है ना, कि ये यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि really the cell has a mind. Right? So after the first defense, which result in swelling or inflammation in tissue, has failed to get rid of the toxins, or pathogens, it decided to go in for a second line of defense. There is switch in gears of defense after the limit of reversible physiological changes is crossed. Certain changes takes place in the genes which induce irreversible changes in the morphology or structure of the cells. So यहाँ पे मॉर्फोलॉजी, अगर हम वहां पे बैरिकेड आ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है ना, वहां पे एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाता है, दैट मीन्स वहां की मॉर्फोलॉजी चेंज होगा, वो पार्ट का शेप चेंज होगा, दैट इज वहां की मॉर्फोलॉजी चेंज हो रही, एंड दैट पार्ट looks uneven, and this is the morphological change, is psychosis second degree. So at the level of the cell and its part, accumulation start taking place. The accumulation can occur in cell wall or cytoplasm. Cell wall start thickening by excess accumulation of lipids, proteins or glycogen. Thus the wall of China is developed to protect the cells from irritation. तो देखो कितना अच्छा है, कितना बढ़िया कि सर ने यहां लिखा है द वॉल ऑफ चाइना। जैसे ही वहां स्वेलिंग बढ़ना शुरू हो जाता है, आप देखो ऑलवेज कोई भी अगर जॉइंट पेन का पेशेंट आता है और अगर आपने मेडिसिन दिया और पेशेंट नेक्स्ट विजिट में कहता है कि मेरे पेन टोटली चले गए, टोटली पेन रिलीव्ड हो गए, तो समझ लेना कि दिस इज रॉन्ग। पेन कभी नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वेलिंग वहां से जाना चाहिए, देन पेन। स्वेलिंग दैट इज द कंस्ट्रक्टिव डिफेंस, मतलब साइकोसिस फर्स्ट, वहां से साइकोसिस कम होना चाहिए, देन पेन। तो अगर फर्स्ट विजिट में पेशेंट कोई भी बहुत अच्छा फॉलोअप देता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पेन कंप्लीटली रिलीव्ड हो गए, आई फील बेटर, देन इट इज डाउटफुल। इसीलिए सबसे पहले स्वेलिंग जाना चाहिए, देन पेन। और अगर पेशेंट बोलता है कि मेरा स्वेलिंग बढ़ते जा रहा है और पेन कम होते जा रहे हैं, अगेन इट इज रॉन्ग। लाइक सो जैसे सर ने यहाँ क्या कहा है द वॉल ऑफ चाइना, आप देखो कि चाइना ने पूरे बाउंड्रीज पे वॉल क्यों बिल्टअप किया,
व्हाई चाइना बिल्ट अप द वॉल। और आप चाइनीज का स्ट्रक्चर देखो, बॉडी बिल्डअप देखो कैसा है, राउंड फेस और फेशियल एक्सप्रेशन उनके डल होते हैं, स्टंटेड है ना, डॉट फिश, हाइट नहीं होती है। दिस इज ऑल इज साइकोसिस। अब ये उनके स्ट्रक्चर में, मतलब बॉडी में एंड माइंड में साइकोसिस होने की वजह से उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए इतनी बड़ी वॉल कंस्ट्रक्ट की। दिस इज द साइकोसिस एक्सेस, राइट? यस। So China, thus a wall of China is developed to protect the cell from irritation. This thickening occurs due to excess production of everything within the cell or system. The pathology which can arise out of such defense include growth or thickening pathologies like polyps, warts, cysts, tumors, atherosclerotic plaques, disposition of pigments and minerals. So these are the diseases of psychosis. Psychotic defense, the second defense. And now the third defense, the destructive, morphological destructive defense. So continuing the story of X and Y, when Mr. Y finds it difficult to counter the hostile effect of the stimulus by either physiological changes or the constructive changes, he might decide to cut off the arm or the part. Yes. तो ऐसा ही होता है। आप देखो बहुत से स्टोरीज आपने सुने भी होंगे, बहुत से लोग कभी कंप्लेन करते कि हमारा नेबरर बहुत ही डेंजरस है, बहुत झगड़ालू है, बार बार कुछ ना कुछ करते रहता है, इसलिए हमने बीच में बहुत बड़ी कंपाउंड वॉल कंस्ट्रक्ट की है ताकि उस पर्सन का चेहरा भी ना दिखे। दिस इज साइकोसिस, है ना। ये पर्सन क्या कर रहा है, खुद को हाइड कर रहा है। वॉल कंस्ट्रक्ट किया मतलब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे बैरिकेड लगा दिया। दिस इज साइकोसिस, मतलब उस वॉल के अंडर ये खुद को हाइड कर रहा है। दिस इज हाइडिंग, इट इज साइकोसिस। फिर भी वो नेबरर कुछ ऐसे मनोवृत्ति का है कि दूसरों को तकलीफ देना, तो उसकी तकलीफ शुरू ही है। वो अलग अलग आइडियाज अपना रहा है कि इस पर्सन को यहां से कैसे निकाला जाए, तो वो वाल को उधर से उसके साइड से कुछ ना कुछ करेगा, है ना, उसको डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा, इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। फिर इनका सेकंड डिफेंस जो कंस्ट्रक्टिव डिफेंस था, इन्होंने अप्लाई किया, वो फेल हो गया कि ये वॉल बांधने के बाद भी ये पर्सन बाज नहीं आ रहा है, ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो अभी हमें और कुछ सोचना पड़ेगा। फिर इनका माइंड और कुछ नए नोवेल आइडियाज सोचने लगता है। माइंड सोच रहा है मतलब बॉडी का हर सेल सोच रहा है, क्योंकि एवरी सेल हैव अ माइंड। बॉडी का हर सेल सोचता है। फिर अब वो थर्ड डिफेंस पे आ जाता है, क्योंकि सेकंड कंस्ट्रक्टिव डिफेंस फेल हुआ है, इसलिए वो थर्ड डिफेंस पे आएगा कि इतना बड़ा खर्चा करने के बाद, वॉल कंस्ट्रक्ट करने के बाद भी अगर ये पर्सन बाज नहीं आ रहा है, तो अब मैं ऐसा करूंगा कि एक तो ये रहेगा, नहीं तो मैं रहूंगा, है ना। दैट इज करो या मरो। दिस इज द थर्ड डिफेंस। फिर अब जान की परवाह नहीं, है ना। अब इतना करने के बाद अब एक ही पर्याय बचता है कि ऐसे से तो ये पर्सन जीने नहीं देगा, है ना। फिर अब जियो या मरो, एक तो वो जिएगा, नहीं तो मैं जीऊंगा। दिस इज द थर्ड डिफेंस, दैट इज द डिस्ट्रक्टिव डिफेंस।
So continuing the story of Mr. X and Y, when Mr. Y finds it is difficult to counter the hostile effect of the stimulus by either physiological changes or the constructive changes, he might decide to cut off the arm or the part which is being poked or under attack. He decides this depends to save the whole body from the effect of the attack on the lower part. When the first defense of the inflammation is not sufficient to take care of the invading hostile stimulus, the cell may undergo changes at the genetic level. It switches its gear to defense to defend or to save the whole organism by destroying a part of it. This defense can also be restored to when the second morphological constructive defense fail. Yes, the pathological conditions that arise out of the such defense include all destructive pathologies like gangrene, necrosis, ulcers, and fractures, etc. is the diseases of third defensive process, that is the sickness. So first defense, it is SORA, is physiological defense. Second defense is morphological constructive defense, that is psychosis, and the third defense, morphological destructive defense, is the syphilis. So these are the three processes of defense to cell. So this is chapter number 6. So defense process, मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गई होगी. यस. सो अगर इस चैप्टर नंबर 6 पे किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो पूछ सकते हैं. यस. यस, वीडियो आज शायद कुछ प्रॉब्लम चल रहा है. वीडियो लैपटॉप के कैमरा में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए वीडियो क्लियर नहीं आ रहा होगा. वाइब्रेशन हो रहा है, राइट? हाँ सर, बहुत वाइब्रेशन हो रहा है. मैं कब से सोच रहा हूँ बोलने के लिए, लेकिन हमको लग रहा है मेरे मोबाइल में ही है क्या? नहीं, कुछ तभी इस कैमरा में कुछ तभी प्रॉब्लम हो रहा है. यस, डॉक्टर योगिता को उनका कल के क्वेश्चन का आंसर मिल गया. ओके, थैंक यू. सो कोई क्वेश्चन? आज का चैप्टर बहुत अच्छा था क्योंकि तीनों भी डिफेंस, माइजम किस तरह से बॉडी में देखना चाहिए माइजम को, ये हमने इस चैप्टर से सीखा है कि माइजम क्या होता है. माइजम इट इज नथिंग बट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी. तो डिफेंस किस तरह से बॉडी हर बार डिफेंस करती है, डिफेंस कैसे चेंज होता है, उसका मोड कैसे चेंज होता है, ये हमने देखा है. यस. और ये रूटीन लाइफ में हम हर पल देखते रहते हैं हमारे सामने, लेकिन समझते नहीं है उसे. हम समझ नहीं पाते कि किस तरह से इसे अवॉइड किया जाए, किस तरह से इसे डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि इट इज अ डिफेंस. वो बॉडी कर रही है, खुद कर रही है. अगर बॉडी वहां पे फेल होती है तो हमें वहां इंटरफेयर करना है, अदरवाइज नो. यस. तो हमें कोई हक नहीं बनता है कि जब बॉडी डिफेंस कर रहे हैं, बॉडी इन वर्क है, एक्शन में है, तो हमें वहां इंटरफेयर नहीं करना है. और हम क्या करते हैं, बॉडी को चांस ही नहीं देते हैं. बॉडी को बोलते हैं तू बैठ जा बाजू में, हम हमारी मेडिसिन देंगे. और ऐसे में क्या हो जाता है, केस विल स्पॉइल. यस. तो केस अच्छी होने के बजाय वहां पे स्पॉइल होना शुरू कर देती है. यस. यस मैम, थैंक यू. बहुत अच्छा लिखा मैडम ने. योगिता दौलताबाद. यस.
मैडम आपका 1 मिनट के लिए आप कैमरा ऑन कीजिए आपका। मैडम ने बहुत अच्छा लिखा है कि आप किताब कितनी भी पढ़ लो, जब तक उसका डिस्कशन नहीं होगा या फिर दूसरों के मुंह से नहीं सुनेंगे, तब तक वो समझ में नहीं आता है। एग्जैक्टली मेरा फ्रेंड है एक, जो हम डिस्कशन करते हैं ऑलवेज, तो वो उसने बहुत बार थे अपना क्या क्रॉनिक डिजीज की बुक बहुत बार पढ़ी, लेकिन वो बोलता है जब मैं तुम्हारे साथ उसका डिस्कशन करता हूँ, हम दोनों साथ में जब पढ़ते हैं तो वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आता है, बहुत ही अच्छी तरह से वो माइंड में बैठ जाता है। लेकिन अकेले पढ़ो तो वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि आइडियाज क्लियर नहीं होते। यस, राइट। यस मैम, योगिता मैम आप कैमरा ऑन कीजिए। यस, तो ये आप तो आप आपका नाम सर? सुरेश कलबुर्गी सर। तो वो मेरी वाइफ है। आपने योगिता क्यों लिखा है? मेरे मेरे वाइफ का अकाउंट है वो। ओके, तो आप दोनों सुनते हैं? यस सर। ओके ओके, थैंक यू। कहाँ से थैंक यू सर सर। आप? सातारा। सातारा के। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सो आज किसी को कोई क्वेरी नहीं है, सब क्लियर? सर रिनल कॅल्क्युलसमध्ये म्हणजे बॉडीचं डिफेन्स मेकॅनिझम काय असतं, म्हणजे कशा प्रकारे ते बनते आणि मग त्याला कसं करू म्हणजे? आपका आवाज है ना बहुत लो आ रहा है, थोड़ा सा मोबाइल पास में लेके बोलिए। सर आता येते का आवाज? हाँ हाँ। सर रिनल कॅल्क्युलसच्या पेशंटमध्ये बॉडीचा डिफेन्स मेकॅनिझम काय असतो? रीनल कैलकुलस, हाँ। कैलकुलस दैट इज द एक्यूमुलेशन, है ना। किडनीज में एक्यूमुलेशन हो रहा है, जो भी पार्टिकल्स है उसका एक्यूमुलेशन हो रहा है। मतलब क्या है, बॉडी किडनी का फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, वहां सैचुरेशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, उसके उससे स्टोन बन रहे हैं। और ये क्यों होता है? when kidneys goes into the fear of, सुनिए बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छा है कि फियर ऑफ अलोननेस, फियर ऑफ फोरसेकन, फियर ऑफ एबंडोनिंग। यस, तो इस तरह से जब फियर आते हैं तो वहां एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो कोई भी, जैसे बॉडी में कोई भी, मतलब साइकोटिक गियर तब आएगा, साइकोसिस प्रोसेस तब स्टार्ट होगी, मतलब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में तब आएंगे जब बॉडी गोज इनटू इनसिक्योरिटी, फियर, टिमिडिटी। और किडनी के लिए है जैसे कि फिश आउट ऑफ द वाटर किस तरह से तड़पती है, वैसे किडनी का काम है। किडनी जब अलोननेस वो पर्सन फील करेगा, उसके लिए उसके मन में डर होगा, टिमिडिटी होगी, इनसिक्योरिटी होगी कि कहीं ये पर्सन मुझे अकेला न छोड़ दे, मैं अकेला ना पड़ जाऊं, मैं मुझे कोई मेरा साथ छोड़ के चले जाए, या फिर मैं अकेला हो जाऊंगा। देन वहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है किडनी में। किडनी लूजेस हिज फंक्शन एंड एक्यूमुलेट द वेस्ट प्रोडक्ट। यस सर, रीनल फेलियर का भी यही कॉज है? रिनल फेल्योर का भी यही कॉज है, लेकिन वहां पे वो हो जाता है। यहाँ पे इनसिक्योरिटी होती है, फियर होती है कि ऐसा हो सकता है। मतलब अच्छा। जैसे कि हम बोलते हैं कि फियर 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, है ना। कि डायरेक्ट जो घटना हो जाती है, डायरेक्ट, दैट इज द डायरेक्ट फियर। और जो घटना होती नहीं, दिस इज इनडायरेक्ट, कि भाई ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, हुआ कुछ भी नहीं है, दिस इज इनडायरेक्ट फियर। तो जैसे कुछ हो गया, वो पेशेंट अकेला पड़ गया, तो फिर वहां पे रीनल फेलियर हो सकता है।
यस, और किसी ने कुछ पूछा? हॅलो, हाँ, यस, बोलिए. गुड इव्हनिंग सर. गुड इव्हनिंग. सर आपल्याकडे येणारे हे पेन्सचे जॉईंट पेन्सचे जे पेशंट असतात सर, रुमॅटॉइड आर्थरायटिस, तर त्यांचं मेन कन्सर्न असते की पेनचं कन्सर्न असते. तर आपण त्यांना सर्व काही गोष्टी समजून सांगितल्यानंतर त्याचं पेन जर कमी नाही झालं नाही तर ते आपल्याला सोडून जातात. अशा वेळेस काय करायचं सर मग? कसं असते, राईट कॉन्स्टिट्युशनल मेडिसिन तुम्ही दिल्यानंतर सुरुवातीला त्याचे पेन वाढतील आणि मोस्टली जे ऑटोइम्युन डिसऑर्डर्स आहेत किंवा रुमॅटॉइड जॉईंट पेन्स आहेत यामध्ये ॲग्रेवेशन ही होतेच. मोस्ट ऑफ द केसेस मध्ये ॲग्रेवेशन होतेच. आणि अशा केसेस मध्ये जर पेशंट पेन बिअर नाही करू शकत कारण ऑलरेडी त्यांना स्टेरॉइड आणि पेन सप्रेस करण्याची सवय पडलेली असते, अशा पेशंट मध्ये मोस्टली ट्रीट करणे खूपच डिफिकल्ट होते कारण त्यांना पेन बिलकुल सहन होत नाही. आणि जर आपण कॉन्स्टिट्युशनल मेडिसिन दिली तर फर्स्ट ॲग्रेवेशन तिथे तुम्हाला दिसेलच. आणि अशा पेशंट मध्ये जर पेशंट पेन बिअर करू शकत नसेल आणि तो पेशंट स्टेरॉइडचा हॅबिच्युअल असेल तर त्यांना मोस्टली जर मेडिसिन दिल्यानंतर पेशंट सपोज तुमच्याशी असं बोलत असेल की मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, ये मतलब पेशेंट आपसे अगर बार बार बोल रहा है, पूछ रहा है कि मैं पेन नहीं सहन कर पाता, पेन मुझे बहुत हो रहा है, मैं क्या करूँ, नहीं तो मैं स्टॉप कर दूंगा मेडिसिन, तो ऐसे पेशेंट को मतलब उसके समाधान के लिए कि भाई अगर आपको बहुत अनबियरेबल पेन है तो एखादी बार आप बहुत रेयरली आप एखादी बार पेन किलर ले सकते. लेकिन अगर आप पेन किलर लेते हैं तो हमारी मेडिसिन की प्रोसेस जो क्योर करने के लिए स्टार्ट हो गई वो रुक सकती है. अगर आपको पूरी तरह से अच्छा होना है तो थोड़ा पेन बियर कीजिए, या फिर बहुत रेयरली कि अब आप कुछ कर ही नहीं पा रहे तो एक आधी टैबलेट ले सकते हैं. लेकिन ये बहुत रेयरली पेशेंट को आपको बताना है. लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का प्रोसेस ये होता है कि वो उस जॉइंट पे जहां स्टिफनेस आ गया है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको पहले स्टॉप करेगा. देन उसके बाद वहां पे जो भी एक्यूमुलेशन की वजह से जॉइंट मोबिलिटी कम हो गई है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, जॉइंट्स बेंड हो गए, वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाते हैं. उसके बाद अगर ये प्रोसेस हो रही तो साथ में उसका ऑटोमेटिकली पेन भी कवर हो जाएगा. तो उनको बोलिए, ये प्रोसेस उन्हें समझाइए कि इस तरह से ये सब कुछ होगा. तो ये जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जॉइंट को अंदर से अच्छा करने में, तो उसकी वजह से जो पेन हो रहा है तो अल्टीमेटली उसके साथ साथ पेन भी कम होगा. लेकिन आपको धीरज रखना पड़ेगा. अगर आप नहीं रखते तो आप कभी अच्छे नहीं होंगे. हाँ, हेलो सर. ओके, हाँ. थँक्यू सर. सर थँक्यू सर. सर आरए फैक्टर पॉजिटिव होने का ही मतलब ऑटोइम्यून डिजीज है. जब एनए पॉजिटिव रहेगा तब ना होगा सर. नहीं, ऑटोइम्यून डिजीज ही है ना वो तो. आरए फैक्टर पॉजिटिव दैट मींस एनए पॉजिटिव, अपना ऑटोइम्यून डिजीज पॉजिटिव. तो सर इस कंडीशन में जब वो पेन किलर जल्दी तो पेन किलर से आराम नहीं होता है, स्टेरॉइड लोग लेते हैं, दिया जाता है. तो हम लोग अगर समझाएं, जैसे मेरा भी 2-3 केस था, वो लोग छोड़ दिए. जो है वो इतना दर्द होता है कि बर्दाश्त नहीं होता है, तो फिर वो लोग बोलते हैं कि यार जो दवा था इसीलिए वही इन खाए. केसेस में आपको पोटेंसी कौन सी देना है? 1 सर. हाई पोटेंसी 10 50 राइट. क्योंकि वहां पे मेडिसिन बहुत ही कम, स्टिमुलेशन इतना माइनर होता है, वो इसीलिए कि पेशेंट को पेन एग्रेवेट ना हो, इसीलिए हम इसमें हाई पोटेंसी यूज करते हैं. हाई पोटेंसी से एग्रेवेट नहीं होगा सर. नो, एग्रेवेशन 200 से होगा.
पोटेंसी से एग्रेवेशन होगा, हाइपोटेंसी से एग्रेवेशन नहीं होगा। तब तो सर हर केस में हाइपोटेंसी दिया जाए। नहीं, ओनली Aggravation। ओनली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में, अच्छा क्योंकि वाइटलिटी बहुत कम हो गई ना। ऑटोइम्यून मतलब क्या, इम्यूनिटी वहां पूरी नष्ट हो चुकी है, इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाना है तो आपको एकदम माइनर स्टिमुलेशन चाहिए। सर मग सुरुवात 10 AM पासून करायची ऑटोइम्युन डिसीज मध्ये? हॅलो, 10 AM 50 AM। ओके सर। तो सर ये जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है ये कंप्लीटली क्योर होते हैं क्या, माय क्वेश्चन। हाँ होते ही होंगे। तो अभी तक देखा है आप लोगों ने कि ये क्योर हो गए? और सर जब कैंसर ठीक हो जाता है तो क्यों नहीं होगा? होते हैं? हाँ देखा हूँ मैंने, सुना ज्यादा है, देखा कम है ना सर। अच्छा, तो ANA टेस्ट इसके लिए होती है, राइट? तो सर ANA आरए टेस्ट, फैक्टर तो निगेटिव हो जाता है। ANA टेस्ट निगेटिव हो गई ऐसा देखा है किसी ने? यस सर। हाँ ANA सर आरए देखा फैक्टर, है, लेकिन उसके बाद भी दर्द। ANA टेस्ट पॉजिटिव से निगेटिव हो गई, निगेटिव हो रही है, ये किसी ने देखा है क्या, एक्सपीरियंस किया है क्या, अपने पेशेंट में नहीं देखा है? नहीं वो नहीं देखा सर, पर आरए फैक्टर की वैल्यू कम हुई है, नॉर्मल रेंज में आई है, ये देखा है। लेकिन वो बाद में बढ़ी या नहीं बढ़ी? पेशेंट के सिम्टम्स कम हो गए, पेन कम हो गया। वो होगा ऐसा, लेकिन कंप्लीटली वो मतलब एक बार कम हो गई फिर बाद में कभी बढ़ी नहीं, 5 साल 10 साल 15 साल? सर का एक ऐसा केस नहीं होता देखा था। सर, बढ़ता है। बढ़ता है, ओके। यस बोलिए। अगर आपको ये कैमरा से तकलीफ हो रही होंगी तो मैं वीडियो ऑन ऑफ कर देता हूँ मेरा। नहीं सर, नहीं ठीक सर, है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ANA टेस्ट बिकम निगेटिव, ये आप लोगों ने किस किस ने अपने पेशेंट में देखा है और ये रिजल्ट किया है? एनीवन? सर ANA टेस्ट नेगेटिव नहीं होंगी, कम हो सकती है उसका टाइट्रेशन, लेकिन टेस्ट नेगेटिव नहीं होती मेरे ख्याल से, क्योंकि जो एंटीबॉडी बनी है तो वो बॉडी की मेमोरी सेल में रहेंगी ना वो। अच्छा, तो ये नहीं होता है? टाइट्रेशन कम हो सकता है लेकिन टोटली नेगेटिव नहीं हो पाएंगे। तो ठीक है, चलो कल मैं वो केस दिखा देता हूँ आपको कि ANA टेस्ट बिकम निगेटिव। सर ओके निगेटिव होता है, बाकी फिर बाद में इंक्रीज हो जाते हैं, फिर दिखता है उसका सिम्टम्स। निगेटिव होने के बाद एक बार नेगेटिव हो गई तो पॉजिटिव नहीं होगी कभी भी। निगेटिव होने के बाद 15 साल तक पेशेंट एकदम ओके, नो प्रॉब्लम, टेस्ट नेगेटिव। ग्रेट सर ग्रेट। तो कल केस देखना सर है? आप ही कर सकते हैं सर। नहीं, देखेंगे कल केस देखेंगे। केस देखना है कि आगे 7 चैप्टर पढ़ना है? नहीं सर, केस देखना है सर, केस केस देखना है। चलो केस देखेंगे कल सर। ANA की टेस्ट दिखा देता हूँ मैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की केस दिखा देता हूँ। हाँ सर, सर क्योंकि हम सर लोगों सर से निगेटिव हुआ है, बाकी फिर पॉजिटिव हो गया है। निगेटिव हुआ ना? हाँ, निगेटिव हुआ फिर पॉजिटिव हुआ, बाकी सर। सर जी, एंजाइटी न्यूरोसिस। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, एंजाइटी डिप्रेशन इम्पल्सिव डिसऑर्डर इंसोम्निया, ऐसे एक पेशेंट 28 इयर्स बॉय को ये सब प्रॉब्लम है, तो उसकी केस कैसी लेनी है, मुझे क्या पूछना है एक्चुअली, सब क्या देखना है? ये सब क्यों हुआ, कब से हुआ, क्या पॉजिटिव फैक्टर्स थे, क्या क्या हुआ, ये सब देखो ना उस केस में।
उसका नाइट शिफ्ट है ड्यूटी, उसने वो स्पेनिश लैंग्वेज का कुछ किया है कोर्स, तो उसका ड्यूटी वैसा है, रात को रहती है। हाँ तो हाँ, उसकी वजह से इंसोम्निया वगैरह, पर उसको वो सब आदत लग गई है सर, भांग खाना वो सब ऐसा। तो तो ये सब बातें उस मतलब वो किस तरह से लेती है, उसे क्या होता है इनसे, उसमें उसकी लड़का रिएक्शन क्या होती है, ये सब आपको निकालना पड़ेगा, उसके डिस्पोजिशन एंड रिएक्शन, वो लेके आपको प्रिस्क्राइब तो करना है। डिस्पोजिशन एंड रिएक्शन, तो ये हमें उसका बेसिक सोरा नहीं लेना है ना इसमें, कि कैसा सर? नहीं नहीं, ये कब से वो स्टार्ट हुआ, और जैसे उसकी ड्यूटी है तो उस वो ड्यूटी की वजह से उसको ये प्रॉब्लम जा रहा है, मतलब वो उस वजह से उसको इरिटेशन होता है क्या, जब कुछ होता है तो किस तरह से उसे रिएक्ट करती है, ये सब आपको डिस्पोजिशन और रिएक्शन लेके उसको प्रिस्क्राइब करना है। सर ये तो लड़का है वहां पे डिजीज सिम्टम नहीं लेना है कि उसकी एंजाइटी बढ़ गई या फिर ये सब होता है तब उसे क्या होता है। ये सब होता है तो उससे क्या होता है? यस। एक्चुअली कैसा ना सर, वो 28 इयर्स का लड़का है, हम्म और वो बहुत लाड प्यार से, जो म्हणतात ना खानदानातला पहिला मुलगा, पहिला हम्म बच्चू जो खूप लाडावलेला, हम्म तो वो एक रिझन हो सकता है, प्रत्येक गोष्टी मिळाल्या, किंवा मग तो म्हणतो की मिळालं नाही म्हणून मी लहानपणीच डिसाईड केलं की इंडिपेंडंट होणार, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ऐसा, शेअरिंग नाही है, कुछ नाही है, शेअरिंग नाही करता लहान बहिणीसोबत वगैरे असं. हम्म आणि उधळपट्टी म्हणजे जसं इम्पल्सिव्ह कसं बोललात तो सर, की मी मॉर्निंग वॉकला गेलो, डोक्यात विचार आला की सायकल घेऊन घ्यायची ना, तर जाऊन सायकल घेऊन घेतो, मग भले पैसे असो वा नसो, असं करून तो कर्जबाजारी पण झालाय. हम्म मला उदाहरण देता की मॅडम हा स्टेथो जर माझ्या डोक्यात आलं की असं स्टेथो घ्यायचा आवडला, तर मी जगातले सगळे स्टेथो घेऊन टाकीन, हम्म असं आहे. हॉट व्हील्स ज्या छोट्या गाड्या असतात ना, कार लहान मुलाचे जे खेळतात अशा लहान लहान छोट्या, तर त्या किती 2100 गाड्या आहेत म्हणे माझ्याकडे. हिस्टेरिकल माइजन। नो, हाँ हिस्टेरिकली है ना, उसका सब इम्पल्सिव इट वो इज है जो, इट इज अ स्ट्रेंज हाँ, आणि तो स्ट्रेंज स्ट्रेंज बिहेवियर, स्ट्रेंज बिहेवियर। इम्पल्सिव्ह, अच्छा स्ट्रेंज. आणि गोळ्या सुरू आहेत ॲलोपॅथी आता त्याच्या सगळ्या, 4-5 औषधं, म्हणजे त्यांनी डायग्नोज केलं की डिप्रेशन, काय इम्पल्सिव्ह डिसऑर्डर्स, असं काय काय 3-4 नावं आहेत त्याच्या याला. मला ते कळलंच नाही की याची पूर्ण लहानपणापासून हिस्ट्री घ्यायची आहे, काय करायचं या केस लहानपणापासून लहान. मग तेव्हाच त्याचं डिस्पोजिशन आणि रिॲक्शन ते पाहायचं का तेव्हाचही, की फक्त या डिसीज कंडिशन मध्ये बघायचं? नाही नाही, डिझीजचं बघायचंच नाहीये. अच्छा, म्हणजे तर बेसिक आपण जीसीएस घेतो तसं. येस, जीसीएस जसं द्यायचं असते तसंच. ओके ओके, ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये स्ट्रेंज हे रुब्रिक येईल त्याच्यात. सर म्हणजे गाडी. हेलो यस। सर, सर केस बहुत बड़ा चर्चा हो रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और सभी लोग रुके हैं, किसी ने लीव नहीं किया है, सभी स्टूडेंट सुन रहे हैं क्या क्या हो रहा है। क्या क्या बोल रहे हैं सर, मराठी में हो रहा है, तो जो नॉन मराठी लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, और ये जो आप लोग बात कर रहे हैं ना केस का। नहीं नहीं, हाँ हाँ, तो वो एक्चुअली कैसा ना, वो एक लड़का है 28 इयर्स का, तो जी उसको जी जॉब जैसे लगा, जैसे 1 लाख का उसको जॉब लगा है जो भी है, तो वो खर्च जो आमदनी है उससे ज्यादा खर्चा करता है, और उसको यदि इम्पल्स आया कुछ भी लेने का तो कभी के कभी ले लेता है। वो इस पे जैसे पैसा ना हो तो वो क्या बोलते हैं, वो कार्ड पे नहीं रहता है वो, उस टाइप पे करके उसने बहुत कर्जा कर लिया है ऐसा, और इसका उसकी वजह। इसमें उसको भांग की आदत, वो सब आदत लग गई है ऐसा। तो उसमें मैडम आपको स्ट्रेंज तो रुब्रिक में आपको स्ट्रेंज ऐसे केस में थिंग्स क्या? इम्पल्स, हाँ हेलो, हाँ हाँ, स्ट्रेंज थिंग्स इम्पल्स टू डू। अच्छा, सर ये ये वाला रूब्रिक एक क्यों बोल रहे हैं सर? सर स्टेंज स्टेंज रूब्रिक क्यों बोल रहे हैं आप सर, किस लिए बोल रहे हैं?
कुछ अलग कर लेता है, वो मैडम माइंड कंट्रोल में नहीं है। मैडम बताएंगे आपको कि वो उसे अगर कुछ दिखा तो वो पूरे दुनिया से वो चीज मंगा लेगा। ऐसा वो बोला सर, वो जैसे स्टेथो, उसने उदाहरण दिया, ऐसा एग्जांपल दिया कि मेरे को स्टेथो पसंद आया आपका। तो एग्जैक्टली उसके इस स्ट्रेंज को देखो आप, एग्जैक्टली क्या है, स्ट्रेंज एटीट्यूड है, स्ट्रेंज क्रैंकी नेचर है, या फिर स्ट्रेंज इन ओपिनियन एंड एक्ट है, या फिर स्ट्रेंज इम्पल्स टू डू है, राइट? अच्छा। तो इस तरह हाँ, से हाँ। देखो आप, पूरी हिस्ट्री लो तो आपको 100% मिल जाएगा, राइट? ओके। Yes. तो ऐसे इसमें वो विराट्रम ये वो ऐसे ड्रग्स आएंगे क्या सर? आप देखो ना, जैसे पहले पहले पूरा लो ऊपर ट्राई ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ओके, चलेगा। चलो, सो थैंक यू ओके, वेरी थैंक मच। यू, थैंक यू सर। यस, Thank सी यू थैंक टुमारो। यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यस, थैंक यू सर। थैंक यू गुड डे। सर कल केस देखेंगे सर। ओके, हाँ, हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू।